اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ اب اس کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ حضور پر جو کتاب نازل ہوئی وہ آخری کتاب، اس کے بعد کوئی اور صحیفہ آنے والا نہیں۔ تو عرض کرنا، میں تمیز زیادہ لمبی نہیں لے جاؤں آپ کو۔ مقصد انسانیت کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ واضح اعلان ہے، ایک باضابطہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک ٹاپک دے دیا، بغیر کسی سوجھ اور بوجھ معمولی رکھنے والا بھی اس ٹائٹل سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ ہدایت کے لیے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی کے لیے نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد ولایت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، جو نیابت کرتا رہے گا نبوت کی۔ سبحان اللہ۔ اب ایک بات جو واضح ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا خیال آپ ہمیشہ رکھا کیجیے۔ ہدایت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ ہدایت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ کا فضل ہر کس و ناقص پر نہیں ہوتا۔ پھر کس پر ہوتا ہے؟ جو محدب ہوتا ہے، جس کے پیش نظر ادب رہتا ہے، وہ ادب والے کو کیا ملتا ہے؟ ہدایت ملتی ہے۔ جو بے ادب رہتا ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ قرآن کی نص ہے یہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی مقامات تک پر یہ ارشاد فرمایا، انبیاء علیہ السلام جو چیزیں نسبت سے تعلق رکھیں، جیسے شعائر اللہ کی تم تعظیم کرو، اللہ کا حکم ہے، قرآن کی نص ہے۔ شاعر اللہ کیا ہے یا اللہ؟ صفا و مروہ شاعر اللہ۔ اللہ نے صفا و مروہ کو شاعر اللہ قرار دے دیا۔ دنیا کے بے شمار پہاڑ ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ایوریسٹ جیسی چوٹیاں ہیں، اور بھی افریقہ کے پہاڑ، خود سعودیہ کے اندر، مکے کے اندر، مدینے کے اندر بے شمار اور پہاڑ ہیں۔ صفا اور مروہ کو کیوں گردانا اے میرے پاک پروردگار؟ اس کی کیا خصوصیت ہے میرے مالک؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صفا و مروہ کو شعائر اللہ جو میں نے کہہ دیا اور اس کو بنا دیا، قیامت تک وہ شعائر اللہ برقرار رہے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک ولیہ اور نبی کی نسبت اس سے وابستہ ہے۔ ایک نبی کی اور ایک ولیہ کی نسبت سے وہ دونوں پہاڑ کیا ہو گئے؟ شعائر اللہ ہو گئے۔ قیامت تک ان پہاڑوں کی حرمت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ انکار کرنے والا دین اسلام سے خارج۔ اب اس سے کیا بات واضح ہوئی؟ اس سے بات یہ واضح ہوئی کہ اللہ کے شعائر کی تعظیم جو کرے گا اس کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے گا، اس کو تقوی نصیب ہوگا۔ جو شاعر اللہ کی تعظیم نہ کرے، جو شاعر اللہ کی تقدس کو نہ مانے، اس کے دل کے اندر تقوی پیدا ہی نہیں ہوتا۔ جب تقوی نہیں پیدا ہوا تو ہدایت ہی نہیں ملتی۔ تو برادران محترم، میرے برادران طریقت اور خاص طور پر سلسلے عالیہ افتقاریہ کے وہ خوش نصیب میرے بھائیوں،
اللہ तबारक ताला ने आपको एक बेहतरीन हस्ती अता फरमाया, उससे अपनी वाबस्तगी पर तुम्हें जितना नाज कम है, अल्लाह तबारक ताला का एहसान है कि अल्लाह ने एक ऐसी प्यारी हस्ती को आपका रहनुमा बनाया है। अब आपका काम है कि इससे पूरा पूरा इस्तिफादा हासिल करें, इससे पूरा पूरा फ़ायदा उठाए। तो ताज़ीम व तकरीम के बग़ैर दिलों का तक़वा मुमकिन नहीं। अल्लाह ने बाज़ाब्ता तौर पर दर्स दिया है, सबक दिया है। छोटे बच्चों को जैसा हम सिखाते हैं, इसी तरह से पूरे उम्मतियों को अल्लाह ने ये सबक अता फरमाया, रसूल की ताज़ीम का सबक अता फरमाया, रसूल की आवाज़ से आवाज़ को पस्त करने का तरीक़ा बताया। तुम आपस में एक दूसरे को जैसा पुकारते हो वैसे ही कहीं तुम अपने नबी को भी पुकारा करोगे? हरगिज़ नहीं, वैसा मत पुकारा करो। उनकी आवाज़ से अपनी आवाज़ को मध्यम रखा करो, कम रखा करो। ये क्या चीज़ है? ये ताज़ीम ही है ना, इसको क्या कहेंगे? अगर खुदा ना खास्ता ए मेरे पाक परवरदिगार ऐसा हो गया कि हम नबी की आवाज़ से आवाज़ को बुलंद कर दिए, अब तो नबी है नहीं, अब आवाज़ को बुलंद करने का क्या सवाल है? उनकी ताज़ीम के अंदर फ़र्क पैदा कर दिए तो क्या होगा? तमाम हमारे आमाल ज़ाय कर दिए जाएंगे, अकारत चले जाएंगे। आमाल क्या है? आपके इबादात हैं, आपके रोज़े हैं, आपका हज है, आपके सदक़ात हैं, आपके तमाम रियाज़तें हैं। ये सब का मंबा जो है वो आमाल सालेहा का, वो पूरे का पूरा क्या हो जाता है? गारत हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और फिर कमाल क्या है? उसकी आपको खबर भी नहीं होती। गुनाह हुआ, गुनाह होते ही नादिम हो गया, नादिम होते ही तौबा कर लिया, तौबा करते ही अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया। वो मौका ही नहीं मिलता। जो बेअदब रसूल है उसको अल्लाह ताला ऐसा मौका ही नहीं देता। बिरादरान मोहतरम, तो इससे ज़ाहिर ये हुआ अहले बैत अतहार का अदब, अपने पीर का अदब, बुजुर्गान दीन का अदब, ये आपको क्या पैदा करता है? आपके दिल के अंदर तक़वा पैदा करता है, और वो तक़वा ही आपको हिदायत नसीब फरमाता है। यही बात है जिसको आप अपने पल्लू में बांध कर रखिए। ये जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कुरान और अहादीस की निचोड़ है, इससे हटकर कोई और मामला नहीं है। इसके ऊपर जितनी तफसील आप ले जा सकते हैं, मगर अब वक्त की इजाज़त नहीं देगा। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिले तो इसको और हम आगे बढ़ाएंगे। अब आप ये यहीं तक आप अपने तौर पर मुतमईन रहिए कि बुजुर्गान दीन का अदब, अपने पीर का अदब, अपने वालिदैन का अदब, ये आपको दिल के अंदर तक़वा पैदा करता है। और जिस दिल में तक़वा होता है वो दिले मुतमईन हो जाता है, वो दिले सलीम कहलाने लगता है। अल्लाह उस दिल के ऊपर अपनी हिदायत नाजिल फरमाता है, तब जाकर वो सिरात मुस्तकीम पर गामज़न हो जाता है। इस्तिक़ामत उस सिरात मुस्तकीम पर उसको नसीब हो जाती है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि मेरे पाक परवरदिगार हमें बेअदब न बना, गुस्ताख न बना, बल्कि हमको अदब के दायरे में रख। हमें अदब के हर हुनर को हमें सीखना और उसको समझने की तौफीक अता फरमा। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे शाह दस्तगीर साहब और इमरान अली शाह साहब आइए। इमरान अली शाह साहब और शाह दस्तगीर शुरू करो बेटे, इधर से लाओ। हमारे सलीम चिश्ती साहब आप भी आइए। इधर
पाँच फरवरी को जो है तो 12 रबीउल अव्वल है। हाँ, उसके बाद से ही उसके बाद अपने को 8 दिन के बाद उसके या जैसा कि इनमें तारीख में फर्क करे तो ना एक महीना लग जाए। हाँ, तो वही समझो अगर इतवार का दिन रख रहे तो 19 रबीउल अव्वल आ रहा है। इतवार 19 रबीउल अव्वल और जनवरी को 12 तारीख को आ रही है। इतवार को 19 आ रही है, फरवरी 12 फरवरी की 12 आ रही है। 12 फरवरी आ रही है। हफ्ता और इतवार, सेकंड सैटरडे और संडे, हाँ। 2 दिन तातील रह रही है। ऐसा है। हाँ, जी। बहुत अच्छा है। अपना तो एक ही दिन करेंगे प्रोग्राम, जी। या सैटरडे को रखो या संडे को, आप जैसा मुनासिब समझो। संडे को रखे तो छुट्टी भी रहती है। जी, मजलिस भी हो जाती है। बहुत ठीक। 19 रबीउल अव्वल 12 फरवरी। और मेरा ये की हमने कि आप होटल से नहीं आकर मनाया करेंगे जैसे मेरा वहाँ मनाते हो औरंगाबाद में। जी। तो लिहाजा जैसे मेरा जो नबी होगी रस वगैरह मेरे में करना भी नहीं चाहता। आप अल्लाह अल्लाह करे, रजत की हिदायत पे रहे। जैसे मीलादुन नबी कदम में हुआ करेंगे, अब जो हो रही मेरी तारीफ मुखर कर कर जैसे मेरा वहाँ का औरंगाबाद। और अब मीलादुन नबी में अब 12 रबीउल अव्वल ही कोई ज़रूरी नहीं है, बाद में चल के ये शासन ये एक कोई एक तारीख जो भी मुकर्रर होंगी उसको अपन जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पर कलम में मुकर्रर कर देंगे। जी। हमेशा मेरे जैसे रजत आया करेंगे उर्फ नहीं होगा बल्कि उर्फ की फातिहा को रबीउल अव्वल के मीलादुन नबी में जम कर देंगे। जी। आया समझ? और आप आमीन बोलेंगे अल्लाह की बात में तंदुरुस्ती अल्लाह और ज़्यादा अता फरमाए। सैयद अनवारुल्लाह हुसैनी साहब को और उनकी रहमान कर। आमीन आमीन। बाद में अल्लाह ताला आमीन। 300 साल तक अल्लाह तबारक ताला गार में लिटा सकता है, तो उनमें तरक्की देना, उनमें बढ़ाना उसके लिए पॉसिबल नहीं। बेशक बेशक बेशक। 300-350 बरस इस कर्मठ से उस कर्मठ से जब आँख खुली तो 350 बरस गुजर चुके। अब उसके ऊपर जरा शक और शुबा है क्या? खुद अपने सिलसिले के अंदर हजरत महबूब अली शाह साहब कादरिया सिलसिले में एक पीर हैं हजरत काश अल्लाह ताला मुझे आबे हयात मैसर करता तो मैं वो आबे हयात पी लेता और सारी उम्र मैं हजरत की खिदमत में लगे रहता। ये ख्याल आना था कि हजरत फौरन मुतवज्जो हुए, फरमाए कि ये पानी क्या आबे हयात से कम है? आपने फौरन उसका चुल्लू बनाया और 1 घूट, 2 घूट, 3 घूट, 4 घूट, बस बोले तक चौथा आधा घूट पी लिए तो 450 साल हजरत की उम्र हुई। अपन जिस सिलसिले से वाबस्ता है उनके उस सिलसिले के बुजुर्ग की हालत ये है। इस वजह से अपना एकदम गौसे आजम से करीबी ताल्लुक हो गया। 400 साल बोले तो कितनी पीढ़ियां गए होंगे? कम से कम 8 पीढ़ियां तो चले गए। सच हम दुआ कर रहे हैं कि हम सैयद अनवारुल्लाह साहब इब्राहिम अब्दुल्लाह अली की हम भी ये दुआ कर रहे हैं कि हजरत हमीद अली घूमते हैदराबाद आ गए तो सही सुदौल हक्कानी की आप जहाँ मज़ार है वो मकान भी है उनका खरीद। सलमान शरीफ से आए थे, हम तो जाके देखे उनके बैठने की जगह इबादत। उनके 2 भाई भी वहाँ फिर में मजबूर है। वहाँ
वहाँ बैठे तो उनको मालूम हुआ कि यहाँ कुछ अल्लाह रसूल की बात मैं नियामत चाहता हूँ, यहाँ मिलेंगी। आपने मारूदा किया कि मैं आपका बैठ लेना चाहता हूँ, मैं मरीज होना चाहता हूँ, आपका आप बैठ देना चाहता हूँ। तो बोले वो मैं हमारे पास तो बड़ा भारी कठिन मामला है, उनको गधे पे बिठाना पड़ेगा, आधा मुँह आधा काला करना पड़ेगा, और एक रंग देना पड़ेगा आबादी का। फिर तो वो क्या नियामत थी तो आपने ये मंजूर कर लिए। अब हमने तो कोई बोलेगा हजरत 100 जूते आप ही मार दीजिए, 50,000 मेरी जायदाद में रहता नहीं। तो काला मुंह और गधे पे बिठाना ऐसे शख्स को करते थे उस जमाने में, जिनने बहुत मायूब काम किया। वो नेमत के हुसूल के लिए आपने बिठा दी, जाओ आ जाओ। किसी ने गोबर मारा, किसी ने फतरे मारा, क्या मारा, आप आए धला धला के ला के बैठे। पहले नाम पूछे थे क्या नाम है आपका, सैयद अकबर अली शाहजहांबादी। अब आए टक्कर दे के गोबर में रहते, नाला धुला के बिठाए, क्या नाम है, हकीर जलील नाचीज अकबर अली। उसी वक्त खिलाफत से सरफराजी था। शेख मुल्ला रहमतुल्लाह अलैह की एक वाक़या सुनाने के लिए मैं ये कह रहा हूँ। आप 40 हमने जो रिवाज सुने आपको कम से ज़्यादा मालूम है। 40 साल के बाद आपने शादी किए, आपने नियत करे थे, ख़ानदानी मुर्शिद हैं आप, और वो लोगों की मस्जिद जहाँ है वहाँ पर उनका मज़ार मुबारक भी है। सैयद अली शाह साहब ने मेरे को बताए थे, उनकी वाली मशाइखी थी, वो हमारी खादरी सब था वहाँ। उन्होंने बोले वो नहीं, वो जिससे वलायत मिलती थी, वली अल्लाह बनते थे, जिन्होंने इस्लाम पढ़ा है, वो मुझे को नियामत हो रहा है। तो आप चले गए 40 बरस तक, आखिर में अजमेर को आए। बोले लोगों को कि यहाँ मन्नत आने के वक्त आपने बड़े बड़े चिल्ले किए, बड़े बड़े वजीफे करे, चमड़े की चड्डी, चमड़े कपड़े के झाड़ों पे रहे, जंगल में रहे, पानी में उतरे, 40 साल तक यही करते रहे। आखिर में खाजात मेरे के पास आए। हाँ, लोगों से पूछे कि मन्नत, अब मन्नत ना बिल्कुल छोटा काम है ये, यानी गिर कर बिल्कुल मन्नत ही मान लेंगे यार। ये बातें क्या करते थे, बोले चिराग लगाना, झाड़ू देना, झाड़ू देना। तो मुसाफ शुरू कर दिए, झाड़ू देना, चिराग लगाना। तो कई बरस गुजर गए, 12 साल। एक दिन वो पहाड़ पर गए, और वहाँ ऐसी मस्जिद तारी हुई तो वो मगरिब हो गई। इधर वो मुजावरा चिराग लगा रहे तो नहीं सो लग रहा चिराग, तो जा रहा वो सब हो रहा। तारी बोली वो हैदराबाद से एक साहब थे, उन्हों लगाते थे तो आए तो लगेगा, तो भागते हुए आए थे। मेरे से नाराज हो गई क्या, आके धड़ बल के गिरे में हो, उनके सिर में चिराग पूरा गया, अंदर मजार के पास डाल दिया। तो आपको बशारत दी है कि जाओ हैदराबाद में फला मुकाम पर अकबर अली है, वो मेरी तारीफ का आपने होश में आने की बात बोले, मैं यहीं मर जाऊँगा मैं, तो आप मेरे को होशियारी में बोलना। ख्वाब को तो बहुत देखते रहता मैं। तो आपने मज़ार मुबारक के पास से ऐसा हाथ दिए, वो देखो तो मैं बैठा। तो अकबर अली शाह साहब यहाँ पर थे और वो अजमेर में, दोनों की आंखें चार हुई। अरे मैं छूँ बोले, ये हमें ख्वाजा अजमेर ही छूँ मैं। अब इधर निकले आप, बोलने लगे अजमेर का चिराग आ रहा। अकबर अली शाह साहब क्या बोलते थे, अजमेर का चिराग आ रहा। आए पहुँचे यहाँ पर, वही बैठे, उनका वही खिदमत करते रहे, कराना। आखिर तालीमात जो बोलते थे तो लिख लेते थे, हम भी तालीमात भी लिखे गए हैं, सीखा भी है। बहरहाल एक ज़माना गुजर गया, उन्होंने अब के खिलाफ से सरफराज फरमाए अकबर अली शाह साहब ने आपको, और ये अब हमारा सिलसिला तुम चलाएंगे।
इसी तरह से महबूब शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के पास ऐसे कई वाक़यात है। खादरिया वहाँ से है, चिश्तिया यहाँ से। हालांकि दोनों खादरिया ताबरिया भी है, महबूब शाह कादरी ताबरिया भी है। और एक बात ऐसी है, मुनव्वर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह मुरीद पीराने पीर के खलीफा शाह दूल्हा कादरी के है। क्या वजह है उसकी? आपने फरमाया वो तो इतनी उम्र दे दिए और तुमको फैज बहुत से मिलेगा। लिहाजा उन्होंने लिखना था पीराने पीर का नाम, तो उन्होंने अपने मुर्शद नाम लिखे शाह दूल्हा कादरी। है मुरीद मुनव्वर शाह कादरी पीराने पीर के मतलब वो शाह दूल्हा कादरी के मज़ार पे हमारे हबीब अजमेरी जाकर आए, गुजरात में है। मुनव्वर शाह के कादरी के खलीफा शाह अब्दुल करीम कादरी हैं मुस्तफ़ाबाद में, और उनके खलीफा ये महबूब अली शाह है। हम जाकर आए वहाँ से। ये पॉइंट की बात है कि मुरीद किनके हैं वो से बात है। खिलाफत किससे मिली? शाह दूल्हा कादरी से। तो उन्होंने बोले खिलाफत किनसे मिली? उमर इनसे मिली। तो वो सिलसिला ज़बरदस्त चल रहा अपना, और बहुत ही तारीखी बातें हैं। अब ये इस वक्त अली को खतारा अपने को जाने का है, और हजरत भी आएंगे ना मैं आ शाह के बाद खत्म मैं जल्दी से आ जाता, नमाज पढ़ने पढ़ते आ जाता। हम यहाँ हमारा बढ़िया ठहरे अब कहाँ गेस्ट हाउस में। और अच्छा, तो वहाँ अब क्या टाइम क्या हो रहा है? 5 बज रहे। जो भी बोले मैं आप जो बड़ो प्रोग्राम जी, वहाँ खाना पका रहे हैं, अच्छा और वहाँ भी पकाने को पैसे दे रहे हैं। अच्छा तो अच्छा, ये यहाँ के लोगों को कब खाना नहीं मिला था, हाँ इस वक्त यहाँ पका के खा लेते, भाटा भी दे देते, अच्छा। और वहाँ भी जाके शरीक होते। और ईशा के बाद खत्म खा के आते नहीं रहेंगे। तो मैं मगरिब के साथ ही वहाँ आ जाता हूँ। ये नहीं, ईशा के बाद ईशा को आना पड़ेगा। हम नहीं रहेंगे वहाँ, हम तो खाना खाएंगे मगरिब के बाद। मगर मैं तबरुक खाऊंगा ना, और कल्याणी के भी लोग आए हुए हैं। दूसरे हबीब अजमेरी साहब की खुवादी होगी, इंशाल्लाह ऐसी इनकी भी होगी, इंशाल्लाह। और भी जो भी आएंगे नहीं मालूम कौन आते। अब वहाँ वाज तो नहीं होगा, बस जो कुछ बयान हो गया बस हो ये गया, बस काफ़ी है। काफ़ी। एक अब इंशाल्लाह मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कलम में हूँगा। कलम में हजरत फरमा रहे, कलम शरीफ में कलम शरीफ में वो बयान होगा हजरत का। इंशाल्लाह और मौका आया कभी तो हमारे पीर साहब में से एक दो को बोलने लगाएंगे मरतल बाग हजरत। नहीं सभी हसन का भी हूँगा। आप सबको साथ में लेकर आइए। आज भी मैंने जिन बातों की तरफ इशारा किनाया किया है वो बुनियादी चीज़ें हैं। देखिए, तक़वा जब बगैर अदब के नामुमकिन। अदब होना, एहतराम होना, हया होना, हया हर चीज़ की एक हया रहती है। करो तो तक़वा इख्तियार करने से मेन मकसद मुअद्दिब हो जाओ, अदब में आ जाओ, वो बहुत बड़ी बात है। आप एक जुमला बोलते तो मैं एक किताब देख के आ रहा हूँ, आपको इजाज़त दी चाहती रहना जब तक। अनवारुर रहमान किताब का नाम है, वो छपी है लखनऊ से, उसकी फारसी भी अरबी भी। वो वही तब्दुर रहमान साहब ने छापे हैं। उर्दू में ट्रांसलेट हो गया जी उर्दू में ट्रांसलेट हो जी हाँ। क्या बोले आप? उर्दू में है, उर्दू में उर्दू में ट्रांसलेट हो गया भाई। हाँ हो गया, वो किताब दी है, मैंने भी लिया। तो उसमें उन्होंने लिखे हैं, अब मैं ज़रा डरता हूँ कि सादात की नज़र पे उन्होंने बोले कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमर में तमाम अहले बैत का लेकर बोले कि या अल्लाह इनकी आन को मेरी नस्ल को बख्श मेहरबानी करना। उन्होंने बोले जितने सादात है दोनों बातें वो सब जन्नत में जाएंगे। इन्होंने बोला कोई बदामाल भी होते जाएंगे, बोले वो बदामाल होंगे कहते, पर हो भी तो जाएंगे।
किताब है मेरे पास, उसके खिलाफ में आज तक किसी को बोलते देखा नहीं मैंने। एक रिवायत है, वो इसी जिम्मन में आप सुन लीजिए। एक बसा बुजुर्ग है, तशरीफ ले जा रहे हैं, चंद साहब इरादतमंदी उसके साथ जाते जाते एक जगह ठहर गए और जहाँ ठहरे वहाँ गड़ा था और उसमें इंतहाई गंदा पानी था मगर गंदा था। नाकाबिले इस्तेमाल था। वो साहब ने कहा कि ये कोई काम आने वाली चीज़ है, तो इनके जो साथ थे उन्होंने कहा ये क्या काम आएगा, ना ये पीने के काम आएगा, ना वضو करने के काम आएगा, ना इससे बाकी हासिल हम लोग पिए नहीं। अच्छा क्या चीज़ है? पी और एक वक्त पियो। उधर से लेते समाज फरमाया ये तो कोई काम का है ही नहीं। उसमें वो भी आ रही है और अलल एलान दिख भी रही है। ऐसे पानी से उन्हें पाक भी करने की सलाहियत हो चुका। साहब ने कहा कि नहीं, बोल रहे हैं आग को इन्हें बुझा नहीं सकता, आग को तो बुझाने की सलाहियत इसमें है, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है? गंदे से गंदा हो जाने दो, लेकिन आग को तो वो बुझा कर रहेगा। पहले बैठे अथार की हालत ऐसी ही है। क्या बात है? ये बात जहन में आने से बेहतर मैं सोचता था कि अल्लाह के मलाइका दरूद भेजते हैं सरकार पर, उनकी हालात पर आई, उन मानो तुम भी भेजो। यहाँ अल्लाह भेज रहा है दरूद, सारे ईमान वाले औलिया अल्लाह भेज रहे, उसके बगैर नमाज भी नहीं होती। वो सब आल के ऊपर दरूद सलाम के वाले कैसे जाएंगे दोज़ख में? मैं ये सोचता था तो किताबें मिल गई, 2 मिल गई, और उसके ऊपर बाद उनको बुरा मालूम हुआ तो मैंने फिर दलीलें दे दिया उनको, फिर खामोश हो गए। तो अपन खुशकिस्मत है कि आले नबी आले रसूल के कदमों के पास अपने को बैठने को जगह मिल गई और इनकी नज़र हम पे पड़ रही है। अल्लाह चाहेगा तो हम भी दोज़ख में नहीं जाएंगे। बुलाया दो जहां के, बुलाया 2 जहां के, रंजो गम को एक सागर में, बुलाया 2 जहां के रंजो गम को एक सागर में, कयामत तक रहे कायम वतन साहिब का मैदान। बुलाया 2 जहां के रंजो गम को एक सागर में, कयामत तक रहे कायम वतन साहिब का मैदान। आमीन। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह
वक्फा पहले आपके साथ में था। नहीं नहीं, आपके करीब बैठा हुआ था, नासिर बोल रहा है। पूरा कब्रिस्तान है। ये साइड तो वहाँ खड़े रहेंगे तो पूरा दिन है कब्रिस्तान। अच्छी लड़ी कहाँ है कैमरे की? कितने बड़ा? आपको कितने का लगता है? हमको 5,000 का, 5-6 हज़ार का। 48 का है। 1000 मतलब 50 को 2000 रुपये का। 2,000 रुपये कम। पता नहीं, ये मुज़फ़्फ़र सत्तार अली, ये तो नाम जहाँ पे चढ़ ही नहीं रहा, तो पढ़ते होंगे तो कैसे क्यों नहीं चढ़ेगा? ऊपर से दो, ऊपर से दो। दे रहे? ऐसा मालूम होता है कि बस आज के हालात पर, आज की कैफियत पर
अंदर चढ़ेंगे पहले ऐसा आ जाओ हमारा इतना
नहीं मुस्तफा
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ